start this bulletin with some breaking updates coming in, this time from Ujjain, where lawyers are now protesting outside the Ujjain court. In fact, this is the latest update coming in the Vikas Dubey case. We are still awaiting more details on this, but the latest update that we are picking up is that lawyers are now protesting outside the Ujjain court in Madhya Pradesh. Even as we speak, we do know that for 6 days and over 170 hours, viewers, the Kanpur-based gangster Vikas Dubey was on a run, and finally he was nabbed this morning. In fact, he masterminded the killing of 8 Uttar Pradesh cops as well, after being tipped off by his moles within the UP police as well. विरोध में यहाँ पर जो वकील हैं उन सभी ने यहाँ पर नारेबाजी की थी। इनका ये भी कहना है कि ये ऐसे अपराधियों के बिल्कुल साथ नहीं है, पुलिस परिवार के साथ है, क्योंकि विकास दुबे जैसा व्यक्ति जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है, तो ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। यहाँ पुलिस विकास दुबे को इस कोर्ट में All right, that was my colleague Satya Vijay, who was getting us his report from outside the Ujjain court, where lawyers are currently protesting. So far, the latest update being that Vikas Dubey was arrested today. In fact, for 6 days and over 170 hours, viewers, the Kanpur-based gangster Vikas Dubey was on a run. And after masterminding the killing of 8, वो यहाँ पे इतनी आसानी से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करके मंदिर के अंदर यहाँ पे प्रवेश करते हैं, 250 रुपए की रसीद कटाते हैं, बाकायदा दर्शनार्थियों की तरह। मंदिर में अति सुरक्षा प्रबंध है, उसके बाद वो आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के बाद वो मंदिर में दर्शन करने के बाद आके खुद पुलिस के सुरक्षा कर्मी को ये बयान देते हैं कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला मैं हूँ। मतलब इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको षड्यंत्र पूर्वक यहाँ पे सरेंडर कराया गया है। और इस प्रकार से महाकाल की पवित्र नगरी को जिस प्रकार से अपराधियों की शरण स्थली बताते हुए वो जो यहाँ पे जो कृत्य किया, इसका कारण हमको बहुत वेदना है। हम दुखी हैं, यहाँ के लोग, सारे जनता, जो उज्जैन शहर की जनता, कि यहाँ पे ये शरण स्थली नहीं बने। कल से दूसरे लोग जो अपराधी हैं उसको ये प्रेरणा मिलेगी कि जाओ महाकाल के बाबा में, महाकाल के मंदिर में जाके वहाँ पर जाके आराम से पेश हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, है ना। ना उनका एनकाउंटर होगा, कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश शासन के गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए और उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, ये नाराजगी थी यहाँ पर वकीलों की। उज्जैन के वकील, इनका कहना है कि किसी भी तरह से इस तरह के आरोपियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उज्जैन में इसीलिए इनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। all right, so that was my colleague Satya Vijay getting us that voices from outside the Ujjain court. We have been seeing how protests are being conducted by these lawyers. They are demanding a capital punishment for Vikas Dubey as well. We do know at this point that it was around 7:30 a.m. at the Mahakal temple in MP's Ujjain district when he was picked up and arrested. These are the visuals on your screen about that. And Republic Media Network Satya Vijay Singh was the first reporter across the country to break this news on your channel that has been on top of this investigation as well, bringing you every piece of the breaking news first in the past 6 days. And after over 6 days and over 170 hours, the Kanpur-based gangster Vikas Dubey, who was on a run after masterminding the killing of 8 of our Braveheart cops, was finally arrested by the Ujjain cops in MP this time. In fact, the procedural aspects of things are still left to be done. And the lawyers at this point are protesting outside the Ujjain court. They are demanding the severest of punishment against, or the capital punishment against Vikas Dubey as well, even as we speak. Let's go across to my colleague Satya Vijay, who's also joining us live with more on this. So Satya Vijay, we just heard those voices that you got for us. These lawyers are demanding capital punishment for Vikas Dubey because they believe that he's making a mockery out of the entire police system and our law and order as well.
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उज्जैन जिला अदालत में मैं हूँ। यहाँ पर वकीलों का गुस्सा देखने को मिला। इन वकीलों का यही कहना था साफ तौर पर कि इस तरह के अपराधी, खूंखार अपराधी, इनको किसी भी तरह से उज्जैन को इन अपराधियों की धर्मस्थली ये नहीं बनने देंगे, इन अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने देंगे। ऐसे अपराधी जिन्हें कि यहाँ पर जो आ जाते हैं और आकर इस तरह से पर्ची कटाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो इसे गलत बताया, इसीलिए नारेबाजी भी यहाँ पर लोगों ने की। और इनका ये भी कहना है कि इस तरह के अपराधी को जो आठ पुलिसकर्मियों को मार सकता है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इसीलिए वकीलों ने ये बातें कही हैं। मैं आपको वकील से बात भी कराता हूं लाइव, वो बताएंगे, अपनी बात रखेंगे कि क्या नाराजगी है। सर, लाइव आप रिपब्लिक टीवी से जुड़े हैं, बताइए, आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्या आखिर ऐसी वजह है जो नारेबाजी करना पड़ी? क्योंकि उसको तो गिरफ्तार कर लिया है। नारेबाजी करने का मकसद ये है कि इस पवित्र नगरी के अंदर अगर बाबा महाकाल के मंदिर के अंदर इतने दुर्दांत मोस्ट वांटेड अपराधी आके यहाँ पर शरण लेते हैं और यहाँ सरेंडर होते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को यहाँ पे, हम उज्जैन वासियों को भी ये बड़ा दुख का विषय है कि जिसको पूरे देश की पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो मध्य प्रदेश की सीमा में आने के बाद यहाँ पर मंदिर के अंदर 250 रुपए की रसीद कटाने के बाद यहाँ पर आके मंदिर में प्रवेश पाते हैं। मंदिर के सुरक्षा कारणों को भी प्रश्न चिन्ह लगता है। Alright, Satyavijay, stay with us. We'll come back to you shortly. But Republic TV, Satyavijay also spoke to the Home Guard Ruby Yadav on nabbing the gangster Vikas Dubey as well. Let's listen in.